سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ موعظت اور درس رکھے ہیں۔ چنانچہ اس کی ابتدا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہوئے کچھ یوں ہوئی، سورۃ انزلناہا، یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا۔ ظاہر ہے اللہ نے ہر صورت نازل فرمایا ہے، لیکن بات کہنے کی کہ میں نے نازل فرمایا، یہ صرف اور صرف یا علی الاقل کم سے کم سورۃ النور کے بارے میں فرمایا، اور پھر آگے چل کے احکامات کا بیان ہوتا ہے تفصیلی طور پر۔ زنا اور غیر شرعی طور پر تعلقات کا قائم کرنا شریعت اسلامیہ نے سخت ناجائز حرام فرمایا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، اگر اس طرح کی برائی میں ملوث ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، شریعت نے بے دو لفظوں میں اس کی شرعی حیثیت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو کہ زنا کرنے والی عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑے مارتے مارتے اگر ان کی روح پرواز ہو جائے تو فرمایا گیا ان کو دفن کیا جائے اور ان کے قبر کے اوپر جو باقی بچے ہوئے کوڑے ہیں وہ مار دیا جائے۔ سوچیں کتنا سخت حکم ہے کہ انسان زنا سے قریب ہو، زنا سے قریب نہ کرنے کے لیے بلکہ دور رکھنے کے لیے بڑی سخت سزائیں قرآن مقدس اور احادیث طیبہ میں متعین کیے گئے ہیں۔ اور پھر یوں بھی فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب تم اپنے ان بھائی کو یا اس عورت کو یا اور لڑکی کو جو زنا میں ملوث ہوئی ہے ان کو سزا دے رہے ہو، اس وقت فرمایا گیا تم کو کسی طرح کی رحمت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، انسیت اور محبت نہیں دکھانا ہے، چلو چلو چھوڑ دو، چھوڑو جانے دو، بہت ہو گیا، نہیں، مارتے رہو۔ اور یہ عمل بھی ایسا نہیں کہ تنہائی میں ہو، بلکہ سب کو جمع کر لیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ ان سے یہ کام صادر ہوا ہے اور شریعت میں اس کی یہ سزا ہے، اور پھر سب کے سامنے ان کو سزا سے دوچار کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ حاضر ہیں وہ بھی تو جانیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو اس طرح کے احکام میں ملوث پایا جائے گا، امور میں ملوث پایا جائے گا، چاہے امیر ہو، کبیر ہو، رئیس ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، بہرحال اس کی سزا شریعت میں یکساں متعین ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی مل گیا، اس نے اگر یہ گناہ کیا تو اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ نہیں بہت دولت والا ہے، بہت ثروت والا ہے، بہت وقار والا ہے، بلکہ بہت زیادہ اقتدار والا، پاور والا ہے۔ نہیں، پاور والا ہو چاہے غریب ہو، اقتدار والا ہو چاہے مقتدر ہو، حکومت والا ہو چاہے رعایا ہو، جو بھی ہو، اگر اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی شریعت میں یکساں متعین ہے اور یکساں اس کا نفاذ بھی ہوگا۔ ایک مثال ہماری نگاہوں کے سامنے حدیث طیبہ میں اس کی ملتی ہے کہ جب لوگوں نے حدود شریعہ میں چھیڑ چھاڑ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ان کو جواب دے دیا۔ ہوا کیا؟ ایک مخزومی عورت جو اس زمانے میں ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس کا قبیلہ بڑا نامور، بڑا نامچی اور بڑا پیسے اور دولت والا تھا، چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی۔ کچھ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ حضور یہ مخزومی عورت فلاں فلاں خاندان کی ہے اور یہ بڑا پاورفل خاندان ہے، اس وجہ سے اگر اس کی معافی ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو بلا شبہ آب زر سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے حدود میں گفتگو کرتے ہو اور ایسی چیز میں سفارش کر رہے ہو جس پہ تمہیں سفارش میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
اور تم ایک मखजूमी औरत जो कि मालदार कबीले से है उसके लिए सिफारिश कर रहे हो। सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान इस सिलसिले में क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल उनका भी हाथ काट लें। शरीयत के बारे में कोई मुदाखलत, कोई मुशावरत और किसी भी तरह की मुसालहत से काम नहीं लिया जाए। आज हमारे मुआशरे में बुराइयां इसी वजह से ज्यादा पनप रही है क्योंकि अगर किसी अमीर कबीर मालदार ने कोई गुनाह कर दिया तो कोई भी उसको बोलने के लिए नहीं आता है। सजाएं तो दूर की चीज है, एक लफ्ज उसके लिए निकालना भी लोग अपने आप में बुरा समझते हैं कि अगर हमने एक लफ्ज कह दिया तो कल इसके खानदान के लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला करेंगे। और वहीं अगर कोई गरीब फल्लाश मुफलिस किस्म का आदमी इस तरह के उमूर में मुलविस पाया जाता है तब तो गांव का हर छोटा बड़ा, इलाके का हर छोटा बड़ा, अमीर हो कि गरीब, सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और तरह तरह की भक्तियाँ और तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसको मारो, इसको काटो, ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही अंजाम देना चाहिए वगैरह वगैरह। जबकि हमारे और आपकी शरीयत में इसका हुक्म यकसा है, चाहे वो कोई अमीर हो गरीब हो, वो सब के लिए यकसा हुक्म है और वो वही हुक्म है जो शरीयत ने मुतय्यन फरमाया है। आज आप आंखें उठाकर देख लें, जो लोग हुकूमत में हैं या जो लोग हुकूमत से अटैच हैं, फिर वो 100 गुनाह करें, उनका कोई भी गुनाह मोतबर नहीं होता है। लाखों का गबन कर जाएं, करोड़ों हजम कर जाएं, मुल्क में रहें, मुल्क से भाग जाएं और तरह तरह की बुराइयों में मुलविस हो जाए, उनसे कोई न तो सवाल करता है और अगर उनका मामला उठाया भी जाए तो बड़ी आसानी के साथ दूसरे मामले में लोगों को उलझाकर इन मामला को खत्म कर दिया जाता है। अभी आपने चंद महीना पहले कर्नाटक के एक बहुत बड़े नेता की बात सुनी होगी जिसने एक बड़ा जुर्म अंजाम दिया था और वो एक बड़ी पार्टी से मुल्हक भी था। बड़ा जुर्म ये था औरतों के साथ गंदी हरकतें करना और फिर उसकी वीडियो बना लेना। एक दो में नहीं बल्कि हजारों में ये वारदात अंजाम दी गई और जब लोगों के सामने ये हकायत आए, होना तो ये चाहिए था कि पार्टी को लोग खुद ही जूते मार के उसको पार्टी से निकालते और बेशर्म को जलील करके अपने इलाके से भी दूर कर देते, लेकिन ये तो वही करेगा जिसके अंदर शर्म हो। जब पूरा का पूरा मुआशरा और पूरी की पूरी कम्युनिटी इसी तरह की बुराइयों में मुलविस हो तो फिर तो वो अपने बुरे भाई मुजरिम को बचाने के चक्कर में ही पड़े। और हुआ क्या, हाँ जनाब ने जर्मनी का सफर कर लिया और जब आए थोड़ी दिन के लिए बस लोगों को दिखाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और फिर क्लीन चिट दे दी गई। हमारे मुआशरे का ये आलम है। अगर अस्फिया नाम की बच्ची हो कश्मीर की तो उसके साथ अगरचे वो 2 साल की हो, बड़ी बुरी तरह से इस्मतदरी की जाती है और फिर पत्थर से मार मार के उसका सर कुचल दिया जाता है। होता है क्या? कुछ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जो ये बुरा काम करने वाले हैं एक बड़ी पार्टी से मुल्हक हैं और जब कहते हैं सैयां होए कोतवाल तो फिर डर का है। बिल्किस बानो के केस में भी यही हुआ क्या, औरत को तरह तरह के मजालिम से दुचार किया गया, चंद लोगों ने मिलकर उसके साथ इस्मतदरी की और फिर मौत की घाट भी उतार दिया गया। क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाती और लोगों को सामने रखकर उनको जब सजा दी जाती तो लोग भी इबरत हासिल करते। इबरत कि इस तरह का अंजाम देने वाले, इस तरह का काम अंजाम देने वालों का अंजाम यही होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि चंद महीने और चंद साल गुजरने के बाद जब मुजरिमों की सुनवाई पूरी हो गई तो बाकायदा कोर्ट ने उनको न ये कि बरी किया बल्कि उनको और जरी किया। और जरी इस तरह से किया कि जब कोर्ट के बाहर आते हैं तो बाकायदा उनका सम्मान और उनका एहतराम किया जाता है, उनको फूल माला पेश किया जाता है, गोया एक तरह से उनको और शह दी जाती है। कोई बात नहीं, तुम जुल्म पे जुल्म करते रहो, हम तुम्हारे भाई पीछे बैठे हैं, तुम जो भी करोगे हम संभालेंगे। जब पूरा मुआशरा
इसी तरह की बुराइयों में मुलविस हो जाए तो फिर इनसे खैर की तवक्को और उम्मीद करना अपने आप ही में बुरा है। आपने और हमने ये भी सुना और देखा है, दिल्ली की रोड पर 31 दिसंबर की रात को या 16 दिसंबर की रात को चंद साल पहले एक बच्ची के साथ जबरदस्ती इस्मत दरी की जाती है और बस चलती रही और लड़की की इज्जत तार होती रही, लेकिन कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं रहा। थोड़े दिन तक स्ट्राइक हुई, थोड़े दिन तक जरा मुजाहरात होते रहे और लोगों ने हा 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 और हाय हाय किया, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और चंद महीने और चंद दिनों के बाद वो आवाज भी दब गई और आज भी न तो मुजरिमों को सलाखों के पीछे किया गया और न ही ऐसी कोई नीति समझ में आने वाली है। जबकि शरीयत इस्लामिया किसी एक के तहफ़्फ़ुज़ को, पूरी कायनात का तहफ़्फ़ुज़ और किसी एक की इज्जत के तार होने को न ये कि एक बल्कि पूरे मुआशरे की इज्जत को तार होने के मुतरादिफ करार दिया है। आपने देखा नहीं, मोहम्मद इब्न कासिम का जमाना है, एक खातून अरब से चलती है और उनकी कश्ती रास्ता भटक जाती है और करते कराते वो हिंदुस्तान पहुंच जाती है। हिंदुस्तान के बादशाह उस वक्त के राजा दाहिर ने उस औरत को या उस खातून को कैद कर लिया। उस खातून ने अपने भाई मुसलमानों को खत लिखा था और कहा था कि मेरी इज्जत की हिफाजत करो। मोहम्मद इब्न कासिम उस जमाने में, जो जमाना बहुत दूर का जमाना है और आज से हजारों साल पहले का जमाना है, जबकि इतने सारे वसाइल नहीं थे, उस वक्त मोहम्मद इब्न कासिम ने एक बहन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए बादशाह के पास खत लिखा था और कहा था, तुम्हें क्या पता हम कैसे लोग हैं, तुम जितनी ज्यादा जिंदगी को तरजीह देते होगे और जिंदा रहने को तुम फौकियत देते होगे, अल्लाह की राह में उससे कहीं ज्यादा हम मर जाने को फौकियत देते। और अगर तुमने हमारी बहन फला फला को नहीं रिहा किया तो फिर दुनिया देखेगी कि हमारी फौज का एक सिरा अरब में होगा और दूसरा सिरा तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे दर पर होगा, और जब तक हम अपनी बहन की रिहाई हासिल नहीं करेंगे तब तक हम सुकून की सांस नहीं लेंगे और पानी पीना अपने ऊपर हराम कर लेंगे। ये इस्लामी उसूल और ज़वाबित थे। इस्लामी उसूल और ज़वाबित इस्लाम ही की रोशनी में रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई एक मुसलमान कुछ गलत करता है तो फिर सिर्फ उसको ये कि मुसलमान है, इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम हमारा कल भी यही कहता था कि जिना हराम है, चाहे वो अपने मुआशरे की बच्ची के साथ हो, चाहे वो किसी गैर के मुआशरे की बच्ची के साथ हो, हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो। कभी भी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि इनके साथ दुरुपयोग किया जाए और इनके साथ बदतमीजी का मुजाहरा किया जाए, बल्कि इस्लाम ये कहता है अगर सामने वाली लड़की तुम्हारी अपनी कौम की नहीं भी है तो कम से कम किसी कौम की बेटी है, किसी कौम की बहन है, उसकी इज्जत की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हें उसकी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए। अलबत्ता आज ये देखा जाता है कि अगर कोई मुसलमान बतौर नाम ही के मुसलमान क्यों ना हो, अगर उससे जिना जैसा खबीस जुर्म साबित हो जाए और वो जुर्म छुपाने के लिए कुछ दूसरे भी जुर्म कर जाए, जुर्म बालाए जुर्म करता जाए, तो फिर पूरी हुकूमत और पूरी दज्जाली मीडिया उसके जुर्म को खोलने के लिए और जुर्म की तहों को खोलने के लिए नए नए ऐसे जुर्म भी उस बंदे के साथ मर देगी जो हकीकत में उसने किया ही नहीं। गुज़िश्ता चंद महीना पहले एक लड़के का, जिसका नाम मुसलमान वाला था, उसने एक काम किया, लड़की के साथ गलत किया और फिर उसके साथ और भी मजालिम उसके साथ किए और फ्रीज के अंदर उसकी बॉडी रख दी। बाद में पता चल गया। इस्लाम सख्ती से इसका मना करता है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर तुमसे बन पड़े और कानून बन सके तो बना लो कानून, कसम खुदा की। और जो भी इस तरह के जुर्म में मुलविस पाया जाए, अगर यकीनन उसने ये जुर्म किया है और जब जुर्म साबित हो जाए तो बीच चौराहे पे खड़े करके उसके पेशानी पे गोली मारो, ऐसी गोली मारो कि फिर उसकी जिंदगी बाकी न रहे। फिर देखो कुछ दिन के बाद सब खुद ही ठीक होते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के बंदे के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर अब्दुल्ला ये काम करे तब भी वही जुर्म है और वही सजा होनी चाहिए। और अगर कोई सुरेश, मुकेश और चाहे जो करे या जॉन करे या कोई और करे,
जो भी जुर्म करे उसकी सजा एक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुसलमान हो तो फिर फांसी की सजा और गैर मुस्लिम हो तो किसी तरह से उसको बचा लिया जाए। नहीं, कानून ये हो कि फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब कोई वजीर हो गुनाह करे तब भी उसको उस गुनाह की सजा मिले, कोई फकीर हो उसको भी उसकी सजा वही मिलनी चाहिए जो सबके लिए मुतय्यन की गई है। इसके सिलसिले में कोई डिस्क्रिमिनेशन और कोई तासुब का बर्ताव नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमें इसका दर्ज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा से मिलता है। आगे चल के मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ सैयदा आयशा के ऊपर भी इस कदर तहमत लगाई गई। होता क्या था, जब जंग के मैदान से काफिला वापस होने लगता था तो किसी एक मकाम पर पड़ाव करता था और पड़ाव करने के बाद वहां की जरूरतें पूरा करता था, नहाना धोना सोना खाना पीना, और फिर उसके बाद काफिला आगे चला जाता था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहां पर पड़ाव पड़ा वहां पर क़याम पजीर नहीं और थोड़ी देर के लिए आप क़ज़ाए हाजत के लिए दूसरी तरफ चली गई। जब आई तो क्या देखा, काफिला जा चुका है और आप वहीं पर बैठ गए, ये सोचकर कि काफिले में एक बंदा जरूर ऐसा होता है काफिला चले जाने के बाद वो पीछे आता है और आने के बाद जो भी चीजें छोटी मोटी रहती है उसको लेकर फिर वापस चला जाता है। जब हजरत आयशा वहां बैठी हुई रही और एक बंदा जिनका नाम सफवान है वो आते हैं और क्या देखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन यहाँ पर हैं, तो आप उम्मुल मोमिनीन को लेकर फिर पीछे पीछे वहां तक पहुंचते हैं जहाँ काफिला पहुंचा हुआ था। जालिमों और हरामजादों को एक मौका मिल गया और मुनाफिकीन खासतौर से हरामखोरों को एक मौका मिल गया, एक अच्छी बात उनको मिल गई कि अब इसको जरा प्रोपेगेंडा किया जाए सैयदा आयशा के साथ। इस तरह से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सारे बद अंजाम दिया गया है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम। जो लोग हजरत आयशा को तहमत लगा रहे हैं, यकीनी बात है इससे दिल तो जरूर दुख रहा है, लेकिन ए नबी और ए मुसलमानों इसको बहुत बुरा न समझो, बल्कि आखिर में ये भी तुम्हारे लिए एक अच्छाई का सबब बनने वाला है। और रहे वो लोग जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है तो इरशाद होता है इनको तो ऐसी सजा दी जाएगी कि फिर दुनिया इनको याद करेगी। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। जो भी इस तरह के काम में मुलव्विस हैं और जिन्होंने बहुतान बांधा है उनके लिए सख्त अज़ाब है। और फिर मुसलमानों को भी तलकीन की गई, इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म। बाद मुसलमान भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इस तरह की सोच में मुब्तला हो गए। फरमाया गया वह इंदल्लाहि अज़ीम, तुम इस चीज को बहुत हल्का समझ रहे हो, जबकि किसी एक पारसा की इज्जत के परखच्चे उड़ाना और इंतहा के हुर्मत करना ये अल्लाह के नजदीक बहुत सख्त बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, मर्द हो कि औरत, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात है। बल्कि यूं फरमाया गया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खाने काबा की इज्जत तमाम कायनात में सबसे ज्यादा बढ़कर है। लेकिन ये बात भी सुन लो, खाने काबा भी किसी मुसलमान की अपनी मुसलमान की इज्जत से बढ़कर नहीं है, बल्कि खाने काबा की इज्जत मुसलमान की इज्जत के बाद, किसी मुसलमान की इज्जत खाने काबा की इज्जत से बढ़कर है। हम खाने काबा को तो चूमते हैं और अपनी आंखों का बोसा देते हैं, लेकिन मुसलमानों की इज्जत हमसे महफूज नहीं रह पाती है। फरमाया गया ऐ लोगों, अपनी इज्जत और मुसलमानों की इज्जत की परवाह करो, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर भी हो उसकी इज्जत की परवाह करना हमारा फरीजा और हमारी जिम्मेदारी है। और आगे चल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए इरशाद फरमाया यअज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तुम्हें सख्त वार्निंग देता है कि आज के बाद अब से कभी इस तरह की बात तुम्हारी जुबान से निकलना नहीं चाहिए, तुम्हारे ज़हन में आना तक नहीं चाहिए। सख्त लहजे में अल्लाह ने इरशाद किया। और फिर जिन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया था उनके खिलाफ सख्त आयतें नाजिल हुई। इरशाद हुआ जो लोग बुराइयों को मुसलमानों के दरमियान शोहरत देना चाहते हैं लहुम अज़ाबुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनको दुनिया और आखिरत दोनों मकामात पर सख्त सजा से दोचार होना ही होना पड़ेगा। और मुसलमानों को फिर हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ऐ मोमिनो मुसलमानों
शैतान के मकरो फरेब में ना आओ, ना पड़ो, बल्कि शैतान से दूरी बनाकर रखो। और जहां पर तुम्हें लगे कि शैतान तुमको बहका रहा है, शरीयत का क्या हुक्म है उस पर अमल करो, फिर देखो क्या होगा, अल्लाह की रहमत तुम्हें आगोश में लेती नजर आएगी। और फिर एक बात जो बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यारी बात है, इरशाद फरमाया गया, इंसान ये सोचता है कि चलो जब तक शादी नहीं हुई है जरा इस तरह से मजे ले लो और शादी के बाद हम अपनी जिंदगी बसा लेंगे और फिर इस तरफ से रुजू कर लेंगे और इस तरफ रिवर्स नहीं होंगे। कुरान ने कहा अगर तुम किसी की बहन या बेटी के साथ इस तरह का अमल कर चुके हो तो फिर तुम ये मत सोचना कि जो खातून भी तुम्हारे निकाह में आने वाली है वो पारसा होगी। जिस तरह का काम तुम अंजाम देकर आओगे उसी तरह की औरत भी तुम्हें मिलने वाली है। फरमाया गया अल खबीसातो लिल खबीसीन, अगर कोई बुरा आदमी है तो उस बुरे आदमी को बुरी औरत भी मिलने वाली है। वल खबीसूना लिल खबीसात, कोई बुरा मर्द है तो उसको बुरी औरत ही मिलने वाली है। वल तय्यबातो लिल तय्यबीन, कोई अच्छी औरत है, नेक पारसा है तो फिर उसको पारसा मर्द भी मिलने वाला है। वल तय्यबून लिल तय्यबात, कोई मर्द ऐसा है जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो कुरान ये वादा करता है कि फिर उसको जो औरत मिलने वाली है या जो खातून मिलने वाली है वो भी पाकीज़ा, इज्जत मआब और इफ़्फ़त मआब पारसा हो। और आगे चल के रब्बे कायनात ने उम्मुल मोमिनीन का वक़ार बुलंद करते हुए कुरान मुक़द्दस के अंदर उनके इज्जत को चार चांद लगा दिया और फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ऐ लोगों सुन लो, मैं रब होकर खालिक और मालिक होकर तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जो तोहमतें नबी की लाडली और नबी की चहेती बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के ऊपर लगाई है, उम्मुल मोमिनीन उसकी तमाम तोहमतों से महफूज है, उनको किसी तरह की बुराई में छुआ करती।